Hello students, Jai Hind once again and welcome back in another video of the chapter Body Fluid and Circulation. Student, in today's video episode I am going to explain you about the blood. Clear? We will discuss about the blood, the general account of the blood. Clear students? So the first question arises, what is blood? If you have studied the animal tissue in 9th and even in class 11th, you have the idea that blood is nothing but it is the red colored fluid connective tissue. Blood की definition क्या है? Blood is the red colored fluid connective tissue. Student, you all should know that the blood is the only medium in our body, or it is only tissue which connect all the body parts with each other. Clear? यही एक ऐसा टिश्यू होता है जो सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है. इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू. क्लियर? सो डोंट फॉरगेट इट. क्लियर? इट्स अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, रेड कलर्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू और रेड कलर्ड fluid connective tissue, and is commonly called as the river of life. It's written here, ये word याद रखना. Which structure is known as river of life? तो ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो your answer should be the blood. So blood is a special red colored fluid connective tissue. Clear? अब देखो क्या है, blood provides means of communication between the cells of different parts of the body and the environment. Clear? ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके रखता है. कैसे? हाउ? You all know that we require oxygen. We take oxygen from the environment. That oxygen enters in the blood, and through the blood it is circulated throughout the body. This you have already studied in your previous chapter. Breathing and breathing वाले chapter में you have already studied. And the carbon dioxide which is produced inside your body, है ना, it is expelled out. तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लंग्स तक आती है? थ्रू द ब्लड, है ना. सो ब्लड इट कनेक्ट्स द एनवायरनमेंट एंड ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स. ठीक है. द वेरियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, दे आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. सो इन दिस वे इट मेंटेन्स द बैलेंस इनसाइड द बॉडी. क्लियर? So blood also acts as a vehicle for transport of gases, nutrient, metabolic waste, hormone throughout the body. Clear? Whatever the drugs which we take, whatever the medicines which we take, है ना, तो it reaches to target organ through the blood only. Clear? आपको head में injury है and you are taking injectable from this region, है ना, or you are taking oral medicines. So first of all these medicines they enter in the blood, and the blood is circulated throughout the body. So wherever the drug is required, है ना, it reaches with the help of the blood only. So blood is the medium that transport oxygen, that transport variety of nutrient, that transport CO2, that transport various metabolites, है ना, excretory product, it transport hormones. Clear? So this is the actual function of the blood. Clear student? So what is the nature of the blood? Nature is salty in taste. ठीक है? It is salty in taste, heavier than the water. ये सारी चीजें मैंने लिखा है, इसमें से कुछ NCERT में नहीं है, but these are often asked in the examination, competitive examination. The pH of the blood is 7.4. कहीं कहीं किसी बुक में 7.3 लिखा है, तो 7.3 to 7.4 both are correct. Clear? It means it is slightly alkaline in nature. Clear? So pH of the blood in the artery is more than in the veins. इसका रीजन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया, है ना, कि pH of the blood in the arteries is more than in the veins. रीजन क्या है? आप देखोगे स्टूडेंट, हमारे आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो H+ आयन क्या होता है? कम होता है. और जब H+ आयन कम होता है तो pH ज़्यादा होता है. और जब ब्लड रिटर्न होके आ रहा है, वीनस ब्लड की बात हो रही है, जब ब्लड वेन्स में पहुंच रहा है तो दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन लेस ऑक्सीजन बट मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना, मोर हाइड्रोजन आयन.
सो बिकॉज ऑफ दिस द पीएच वेरीज। आपको रीजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन द पीएच ऑफ द ब्लड इज मेंटेन्ड बाय द बैलेंसिंग द रेशियो ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड इन द ब्लड, ठीक है। इन दोनों के रेशियो को मेंटेन करके ही ब्लड के पीएच को मेंटेन किया जाता है। ब्लड वॉल्यूम कितना है, अब बारी आती है ब्लड वॉल्यूम। एक इंसान में, एक स्वस्थ मनुष्य में कितना ब्लड होता है? अगर जनरल क्वेश्चन पूछे तो सब लोग गेस करेंगे 3 लीटर, कोई बोलेगा 4 लीटर, कोई बोलेगा 4.5 लीटर, कोई बोलेगा 6 लीटर, कोई किताब में पढ़ के आएगा बोलेगा 4 से 5 लीटर, है ना। तो ये गेस लोग कर लेते हैं, बट एक सिंपल सा फार्मूला है, टोटल बॉडी वेट अपॉन 12। आई हैव रिटन वेट, वेट मतलब बॉडी वेट से मतलब है। यहाँ पे किससे मतलब है? बॉडी वेट से मतलब है, ठीक है। बॉडी वेट अपॉन 12, कहीं कहीं बॉडी वेट अपॉन 11, तो मोर और लेस सब सही है, लगभग उतना ही आएगा, ठीक है। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है, 60 kg है, क्लियर, तो 60 kg डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आपका आ जाएगा 5 लीटर, क्लियर। आपकी बॉडी में कितना ब्लड है? 5 लीटर है, क्लियर। अगर आपका बॉडी वेट 45 है तो डिवाइडेड बाय 12 कर लो, क्लियर, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 लीटर से थोड़ा सा कम आएगा। अगर आप 1 क्विंटल के हो तो आपका ब्लड वॉल्यूम उस हिसाब से हो जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्लियर। तो ये ब्लड का जो वॉल्यूम होता है इट इज द टोटल बॉडी वेट अपॉन 12। तो इसमें कोई आपको गुणा गणित करने की जरूरत नहीं है, कोई मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल वे है, ठीक है। एंड दिस ब्लड वॉल्यूम इंक्लूड्स व्हाट? आप पढ़ोगे कि ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा अब प्लाज्मा होता है और आरबीसी होती है, अभी पढ़ोगे। तो ये ब्लड वॉल्यूम इंक्लूड्स बोथ द वॉल्यूम ऑफ आरबीसी एज वेल एज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर स्टूडेंट। And the blood volume is regulated by a very important hormone that is the ADH, ठीक है। ये जो भी पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे अभी आपको लिखा है माय डियर स्टूडेंट, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको एक नजर देखो, ठीक है। यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मैं हट जा रहा हूँ, क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट देख लो, है ना। तो ऑल दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट इट डाउन, क्लियर। So this is about the general things, general points related to the blood. Now I will tell you the you can say composition of the blood. So now let us discuss about the composition of the blood. अभी मैंने आपको जनरल अकाउंट बताया था ना, अब हम लोग आगे देखते हैं ये ब्लड का कंपोजिशन है। दिस चार्ट इज शोइंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। एक ब्लड में क्या क्या होता है, ठीक। टेक द फ्रेश ब्लड इन अ बाउल और इन अ पेट्री डिश। किसी की गर्दन काटो और आप एक ब्लड रख लो, काटना नहीं आप, ठीक है। आई मीन टू से दैट यू जस्ट टेक आउट द ब्लड, है ना, एंड पुट इट इनटू द बाउल ऑन द पेट्री डिश एंड लीव इट एज सच फॉर a few minutes. What do you observe? You observe that a red colored clot settle at the bottom and the straw colored or pale colored fluid floats on the surface, clear. So the fluid which floats on the surface, slightly yellowish or straw colored fluid that which flows on the surface, it is nothing but the blood plasma, वो blood plasma होता है students, clear. उसके बाद जो clot है, रेड कलर का जो clot होता है, that is nothing, this is the formed element. So blood has two major part, blood plasma, आप देखोगे blood plasma होता है, clear, और it makes 55% of the total blood volume, and formed element it makes 45% of the total blood volume, clear. And what is plasma? Plasma को आप क्या बोलोगे? Plasma आप बोल सकते हो it's a straw colored liquid part of the blood, ठीक है, straw colored liquid part of the blood, that is called as the blood plasma. और blood plasma में क्या होता है? What is the composition of the blood plasma? Whatever we take ultimately it become the part of blood plasma. अब हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो blood का part हो जाता है। रेस्पिरेटरी गैसेस है हमारे बॉडी में, ब्लड प्लाज्मा का पार्ट होता है। जो ड्रग्स हम लोग लेते हैं ब्लड प्लाज्मा का पार्ट होता है। whatever the byproducts are produced in the cells by the various activities, they become the part of the blood,
ultimately they become the part of the blood. Clear? So here is the composition of the plasma, है ना. वैसे तो बहुत डीप में हम लोग जाएंगे तो सबका कंपोजिशन कितना कितना होता है ये भी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन वहाँ स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. वी हैव टू गेट द बेसिक आइडिया. क्लियर है ना. जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं दैट वी हैव टू डिस्कस. क्लियर. सो 90 to 92% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज द वाटर. क्लियर. उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. आपने देखा होगा सोडियम है, सोडियम आयन है, पोटेशियम है, क्लोराइड्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, है ना. दीज आर द वेरियस आयंस और यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा. मैग्नीशियम भी होता है. ठीक है. तो इलेक्ट्रोलाइट्स में मैंने आपको बता दिया, मैं रिपीट कर दूं. जो कॉमन है, जो आपको जानना चाहिए, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, मैग्नीशियम आयन है. ठीक है. इवन ब्लड में कैल्शियम आयन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है ना. ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड के प्लाज्मा में होती हैं. मैंने मेजर आपको बताया. अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी इलेक्ट्रोलाइट्स आर आल्सो देयर, सम सॉल्ट्स आर आल्सो देयर इन द ब्लड प्लाज्मा. ठीक है. प्लाज्मा में देखोगे प्लाज्मा प्रोटीन्स आर देयर. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए आपको जानना है. 7% ऑफ द टोटल प्लाज्मा, 7% ऑफ द टोटल प्लाज्मा इज व्हाट? Protein. There are 3 types of plasma protein present in the blood plasma: albumin, globulin and fibrinogen. याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर. एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन इट इज रिलेटेड टू द डिफेंस. दिस इज रिलेटेड टू द डिफेंस. ये हमारी बॉडी के डिफेंस से सॉरी ऑस्मोटिक बैलेंस से रिलेटेड है. This is related to the osmotic balance. Clear? Albumin, this is related to maintaining the, I am writing here, osmotic balance. Osmotic balance. ये osmotic balance से है. Globulin, ये एंटीबॉडी का काम करेगा and it is related to the defense mechanism. ये डिफेंस से रिलेटेड है, हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है. और फाइब्रिनोजन इट इज रिलेटेड टू द ब्लड क्लॉटिंग. इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे ब्लड क्लॉटिंग. तो ये तीनों प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेम द 3 प्लाज्मा प्रोटीन, है ना. तो योर आंसर शुड बी द एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन. और यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि विच प्लाज्मा प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद द ब्लड क्लॉटिंग. तो योर आंसर शुड बी फाइब्रिनोजन. विच plasma protein is associated with the defense mechanism? तो globulin. Clear? Then albumin का function क्या है? This maintain the osmotic balance in the body. Clear? इसके अलावा प्लाज्मा में क्या है? न्यूट्रिएंट्स है. न्यूट्रिएंट में क्या है? लॉन्ग लिस्ट इज देयर. उसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है. वॉट एवर वी टेक इट बिकम द पार्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा. डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद सारा चीज जो है ब्लड में जाता है, ब्लड का पार्ट हो जाता है. देन vitamins are there, hormones are there. All the hormones they travel from one place to another place through the blood stream only, so they remain suspended in the blood plasma. Then respiratory gases है ना, ऑक्सीजन और CO2 और O2 की बारी आती है. यही 2 गैसेस हैं मेनली. ठीक है. These are the part, these remains in the blood plasma. उसके बाद important क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट. यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है ना. these are the नाइट्रोजनस वेस्ट. आप बोल सकते हो, आप 1-2 का नाम लिख लो. यूरिया है ना, यूरिक एसिड हो गया, है ना. उसके बाद अमोनिया होता है. ठीक है ना, अमोनिया है. क्लियर. फिर और भी हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, और भी होते हैं. क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है. इस तरह के वेस्ट जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में होते हैं. ये स्टूडेंट. अब जो दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, द सेकंड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट. तो सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट. ये क्या है? सॉलिड पार्ट आप बोल सकते हो. ठीक है. सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड. क्लियर. ये फॉर्म्ड एलिमेंट है. इट मेक्स 45% ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट. टोटल ब्लड का 45% है. And formed element is divided into RBC, ठीक है, WBC and platelets या
thrombocytes. We have to study in detail about the RBC, WBC and platelets. एक एक करके हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में. Clear? RBC it makes 95%, याद रखिएगा, of the total formed element. ठीक है. WBC it is 0.1%. ये 0.1% है. पढ़ोगे आप देखोगे कितना है. और टोटल फॉर्म्ड एलिमेंट का 4.8% हमारा प्लेटलेट्स होता है. क्लियर स्टूडेंट? और फिर फर्दर WBC इज फर्दर डिवाइडेड इनटू न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स. क्लियर? जब हम WBC डिटेल में पढ़ाएंगे तो आप ये देखोगे ये सारी चीजें. यानी WBC ऑफ 5 टाइप्स, ये तो आप अभी नोट कर लो. WBC कितने तरह की है? 5 तरह की है. न्यूट्रोफिल्स हो गए, एस्नोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स. क्लियर? और इसकी भी कैटेगरी आप देखोगे. WBC के 2 टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट. फिर ग्रेनुलोसाइट को फर्दर डिवाइड करते हैं न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल में. और जो हमारा एग्रेनुलोसाइट होता है वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में डिवाइडेड रहता है. परसेंटेज कंपोजिशन आई हैव ऑलरेडी रिटन. न्यूट्रोफिल में 60 to 65%, एस्नोफिल 2 to 4% ऑफ द टोटल WBC. बेसोफिल इट इज लेस देन 1, यानी 0.5 to 1% आप बोल सकते हो. 0.5 to 1% के बीच का है. मोनोसाइट 3 to 8%. और लिम्फोसाइट जो होता है 20 to 25% ऑफ द टोटल WBC. क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज अबाउट द ब्लड. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ द ब्लड इन डिटेल. ठीक है? बहुत आसान है. ब्लड का फंक्शन आप सब लोग जानते हो. तो नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेट वीडियो में हम लोग इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. So I hope that you are able to understand the composition of the blood. Clear? ये मैंने सिर्फ आपको ब्लड का कंपोजिशन बताया. अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे RBC के बारे में, WBC के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में. ये कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं तब आपको मैं ब्लड का टोटल फंक्शन बताऊंगा कि व्हाट इज द एक्चुअली व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड फंक्शन ऑफ द ब्लड. Clear students? So thank you very much for watching this video very patiently. It's my sincere request from all of you to please share my video among your colleagues. Clear? And please subscribe my channel if not yet subscribed. And don't forget to press the bell icon, my dear students. Thank you very much and have a lovely day.